Hello everyone, how are you all? I hope all is good. So, welcome to the class, and this is me, Ankita Kabra. So, in today's class, we are going to start a mines, a new unit. Okay, from examination point of view, this unit is very scoring and very important. Okay, so ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, इथर, right? Aldehyde, ketones, carboxylic acids, and now there is amines. So we have studied number of compounds till now, and now this is the very important organic compound that is amines. Okay, so let's get started with amines. Amines. Now, what are amines? Amines पढ़ने से पहले you must know the ammonia, that is NH3, right? अभी जब हम ये जो तीन हाइड्रोजन है which is attached to the nitrogen atom, they get replaced by one or more alkyl group. Okay, consider if we replace one hydrogen by one alkyl group. Okay, तो अभी तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक चला गया तो it is NH2, right? और क्या हो गया, एक आ गया अल्किल ग्रुप, राइट? सो दिस इज योर अमाइंस. इफ इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने, एक और अल्किल ग्रुप ऐड कर दिया, सो दिस इज NHRR, राइट? सो इस तरीके से, सो दिस आर अमाइंस. Fine. So amines are the organic compounds which are derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia molecule by alkyl or aryl groups. Okay. Now, in nature, there are a number of compounds like proteins, vitamins, alkaloids, hormones, which contain amino group in them. Okay. Now, there are two active compounds biologically, right? Adrenaline and ephedrine. You must heard this name in biology, okay? And both this contain amino group which used to increase blood pressure, okay? Then novacin is there, which is a synthetic compound, okay? Now next is Benadryl, which is antihistaminic drug, okay? Now quaternary ammonium salt matlab whenever this NH3, if all these three hydrogen are replaced by alkyl group, so this is NR3, right? And one more alkyl group is added to this tertiary alkyl group, so it will be N positive R4. So this is your quaternary ammonium salt, which is used as surfactant, जो detergents में use होता है, okay? So we'll study what are these different amines in detail, but this is the overall description of amines. Okay. Now we will study classification of amines. Now amines are classified as primary, secondary, and tertiary amines on the basis of how many hydrocarbon group, how many alkyl group or aryl group are bounded to the nitrogen atom. Okay. Now this is your ammonia, NH3, right? Nitrogen is bounded to 3 hydrogen. Okay. Now whenever this one hydrogen is replaced by one alkyl group, okay, so at that time it is primary amine. The functional group is amino group, NH2 group. Okay, this is the general formula, and this is your functional group, which is known as amino group. कौन सा ग्रुप है ये? amino group. Okay, and this is the general formula for primary amine, जिसमें एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होता है by one alkyl group. Okay, if two hydrogen atom which is attached to nitrogen atom are replaced by two alkyl group, देखो यहाँ पर this one and this one. Okay, so at that time this is secondary amine. यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इट इज bivalent NH, and this is known as imino group. इसको क्या बोलते हैं? इमीनो ग्रुप. प्लीज नाम याद रखिएगा, इमीनो ग्रुप. ओके, और जो इसका जनरल फॉर्मूला है
that is RRNH, right? So this is secondary amine. Now, when this three hydrogen, all of the three hydrogen are replaced by the three alkyl group, okay, so that time it is tertiary amine. यहाँ पे जो आपका functional group है that is trivalent nitrogen atom, okay, fine. And this is your general formula R3N. So I hope this much is clear. Now in this case, this secondary amine and tertiary amine, they are further classified as aliphatic and aromatic. Okay, they are further classified as aliphatic and aromatic. Now अभी जो aliphatic है, aliphatic in the sense this R group जो है, ये जो दोनों R group है, ये alkyl group होंगे. At that time this will be aliphatic amine. Okay, if this R group may be alkyl, aryl group अगर रहा, aromatic ring अगर रही, benzene ring रही, तो that time it will be aromatic amine. Okay, so secondary and tertiary amine are further classified as aliphatic amine and aromatic amine depending on your hydrocarbons. Okay, which group is attached to the nitrogen atom. Fine. So just remember this functional group, general formula, okay, and classification of amine. बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस पे क्वेश्चन आते हैं. अभी तक जो हमने अल्कोहल में क्लासिफिकेशन देखा, अल्डेहाइड में क्लासिफिकेशन देखा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, राइट? वो कार्बन एटम के बेसिस पे था, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दैट इज ऑन कार्बन एटम, राइट? बट अभी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल, अल्डेहाइड्स and many other organic compounds, right? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें you have to see this NH2 group, okay? If अगर ये functional group रहता है NH2 group, that time it is primary amine, okay? If this is your functional group, that time it is secondary amine, and this, if this is your functional group, that time it is tertiary amine. So it depend on nitrogen atom, it will not depend on carbon atom, okay? अगर nitrogen को एक alkyl group attached है तो it is primary. If nitrogen atom is directly attached to two alkyl groups and one hydrogen, then it is secondary. If nitrogen atom is attached to three alkyl group, at that time it is tertiary. Okay. So बाकी के classification से amines का classification is very different. Please keep the thing in mind क्योंकि इस पे question आता है. Okay. Now here's the question. Classify each of the following amines as primary, secondary or tertiary amine. Okay, so this is CH3, CH2, CH2, NH2. Okay, so अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप NH2 दिख रहा है, राइट? तो हमें मैटर नहीं करता है कि कितने कार्बन एटम है और कार्बन एटम कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है, ये कौन सा ग्रुप है. ओके, सो ये फर्स्ट वाला कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? इट इज प्राइमरी. Okay, now this is second is CH3, NH, CH2, CH3. Now you can see here, this is your functional group which is imino group, bivalent NH, right? So एक तरफ से ये alkyl group है which is methyl और एक तरफ से दूसरा alkyl group है that is ethyl, right? So ये हुआ आपका secondary amine, right? This is, ये तो बहुत ही famous compound है, that is aniline. ओके, NH2 ग्रुप है, मतलब ये कौन सा हुआ, प्राइमरी. ओके, एंड दिस वन इज नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, अल्किल ग्रुप्स, अरिल ग्रुप्स, तो दिस इज टर्शरी. ओके, अगर ऐसा रहा कोई फंक्शनल ग्रुप तो दैट इज टर्शरी. फाइन, चलो, सो moving forward. Now there is a nomenclature of amines. Now nomenclature भी बहुत different है amines का, okay, than any other compound. बाकी अल्कोहल, फिनॉल में we used to name
नॉमेनक्लेचर रूल्स विल बी सेम, बट नेमिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इन द केस ऑफ अमाइंस. सो वी विल सी इट. पहले हम देखते हैं कॉमन नेम्स. ओके, तो जब हम अमाइंस के कॉमन नेम की बात करते हैं, दैट टाइम we used to write the name of alkyl group first, followed by the word amine. मतलब सफिक्स कौन सा लगेगा? amine. पहले किसका नाम आएगा? पहले अल्किल ग्रुप का नाम आएगा जो नाइट्रोजन एटम को बाउंडेड है. See here, this is CH3, CH2, NH2. ओके, तो ये है आपका अमीनो ग्रुप. अभी नाइट्रोजन एटम को कौन सा ग्रुप बाउंडेड है? इथाइल ग्रुप. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल, नेम ऑफ अल्किल ग्रुप, फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन. राइट? Now, if two different, if we talk about secondary amine and tertiary amine, तो two different alkyl group हो सकते हैं attached, दो R and R dash may be same, may be different, right? Secondary और tertiary case में, तो अगर वो different रहे, तो we arrange them according to alphabetical order, जैसे हम बाकी केस में करते हैं, right? And if they were same, we will use the prefix di, tri, tetra, okay, for identical substituents. ये तो हमें पता ही है. अभी देखो यहाँ पे in this case this is nitrogen, okay, ये एक मिथिल है, दूसरा मिथिल है, और एक कौन सा है? इथिल है. मतलब यहाँ पे दो तो डिफरेंट ग्रुप है, राइट? तो इथाइल मिथाइल, राइट, बट दोनों मिथाइल है, तो वी वॉन्ट राइट इथाइल मिथाइल मिथाइल, राइट? जो दो सेम ग्रुप है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, राइट? सो दिस इज इथाइल डाइमिथाइल अमाइन. फाइन, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन. नाउ हियर इट इज CH3 CH3 cyclohexyl group, right? So arrange them according to alphabetical. ये दो सेम है CH3 CH3, so उसके लिए तो प्रीफिक्स आ जाएगा डाई, ओके, और ये दूसरा है तो इसके लिए हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो दैट इज साइक्लोहेक्सिल डाइमिथिल अमाइन. फाइन. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर प्रीफिक्स अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो प्रीफिक्स यूज करना है, अगर डिफरेंट है तो आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. बट जब आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो ये प्रीफिक्स के अल्फाबेट्स हम नहीं देखते हैं, ओके? वी वोंट गो अकॉर्डिंग टू द प्रीफिक्स अल्फाबेट, we will see the alphabet of alkyl group. Okay, this is salt, quaternary ammonium salt, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सॉल्ट होता है, N पॉजिटिव होता है, R4 होता है. मतलब नाइट्रोजन को कितने अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं? 4 अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं और एक सॉल्ट होता है. अभी N पॉजिटिव है तो X नेगेटिव भी होगा. ओके, सो दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. सो अभी देखो, दिस इज विच ग्रुप? CH3 CH2 CH2 CH2. ये है ब्यूटिल, राइट? कितने ब्यूटिल है? 4. तो टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम क्लोराइड. ओके, सो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है. इफ वी टॉक अबाउट एरोमेटिक अमाइंस, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप है, सो दिस इज योर एनिलीन, राइट? कॉमन नेम इज एनिलीन, ये तो हम सबको पता ही है, बहुत ही फेमस है, राइट? एनिलीन. सो जो भी इसके फिर डेरिवेटिव होंगे, दैट इज इसके डेरिवेटिव कंसिडर किए जाते हैं, राइट? अगर यहाँ पे ब्रोमो अटैच्ड है, right? So this is bromoaniline, parabromoaniline, metabromoaniline, metachloroaniline, orthochloroaniline, in that way. Okay, so in that way it is nomenclate. Fine. So now IUPAC. Now if we talk about, सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइंस की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शियरी. फाइन. तो whenever we talk about nomenclature, IUPAC nomenclature, तो सबसे पहली चीज होती है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, राइट? विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज अमीनो ग्रुप, राइट? सिलेक्ट अ पैरेंट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो. फाइन. सेकेंड थिंग इज जो पैरेंट
चेन आपने सिलेक्ट की है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट की है, वो करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है, राइट? मतलब अगर एक कार्बन की चेन है तो दैट इज मीथेन, 3 की है तो दैट इज प्रोपेन, 5 की है तो दैट इज पेंटेन, राइट? सो नाउ name the parent chain. We have to name that parent chain according to the number of carbon atom present in the chain. Okay, so जब हम नेमिंग करेंगे तो we will replace the E of alkane by amine, right? तो नाम क्या हो जाएगा? alkanamine. ALKANE is alkane, right? तो E हमने रिप्लेस कर दिया किससे? अमाइन से. So now all this alkanamide is written as single word. Okay, कोई gap नहीं होता, कोई hyphen नहीं होता, कोई common नहीं होता बीच में, ठीक है? So like in this way. Now consider this is your compound CH3 CH NH2 CH2 CH3, right? So this is 4 carbon chain, 4 carbon atom की chain है आपकी, 1 2 3 4. Second numbering हम कहाँ से करेंगे? तो 4 carbon containing, this is butane, right? Third thing, we have to number the chain. Numbering ऐसे होगी जहां से NH2 group should get lowest number, मतलब जिस कार्बन एटम को NH2 group attached है वो कार्बन एटम को lowest number मिलना चाहिए. Okay, so number the parent chain from the end nearest the nitrogen atom. Last thing, the position of the attachment of nitrogen atom is indicated in front of the parent chain name, right? तो consider 1 2 3 4. अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते तो इसको 3 नंबर आता, so that would be not right, right? So 1 2 3 4 is correct. 4 carbon containing alkane is butane, जिसका E हमने रिप्लेस किया by amine, so it is butanamine. So it is 2-butanamine because NH2 कौन से कार्बन एटम को अटैच है? सेकेंड कार्बन को. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं. ओके, सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना, दिखाना. फाइन. सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने लिया 2-butanamine. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट डायमाइन्स, मतलब एक कंपाउंड में अगर दो आपके ग्रुप रहते हैं, 2 अमीनो ग्रुप रहेंगे, तो आप कैसे नेमिंग करोगे? उस टाइम पे फॉलो द सेम रूल्स, बट जो हमने ई रिप्लेस किया था ना पहले, वो ई अभी यहाँ पे रिटेन रहेगा, वो रिप्लेस नहीं होगा. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन है, राइट? तो यहाँ पे हमने ई को रिप्लेस नहीं किया है, ई को रिटेन किया है. ओके, फिर हमने नंबरिंग की, दोनों किसी भी साइड से करो, इट्स 1 and 4 ओनली. ओके, so it's 1 4 which is separated by comma और उसके बाद hyphen, right? Butane diamine. So जब आप diamines की बात करो तो प्रीफिक्स लिखना important होता है, क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप है तो हम diamines लिखेंगे. जैसे 2 अल्कोहलिक होते हैं तो हम लिखते हैं डायोल, 2 एल्डिहाइडिक होते हैं तो हम लिखते हैं डायल. So यहाँ पे diamine. Okay, so keep this thing in mind. Now, whenever we talk about secondary and tertiary amines, right? So let me, before going to the secondary and tertiary amine, एक example लेते हैं. CH3N CH3 okay, this will be secondary na. Wait a second. CH3 CH2 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 NH2. Okay, so ये है आपकी कार्बन चेन of how many carbon atom? 1 2 3 4 and 5, right? 5 carbon containing alkane is pentane. Okay, so pentane E replace होगा किससे? amine से, so it is pentanamine, right? 1 pentanamine. Okay, so this thing you have to keep in mind. जैसे ही NH2 ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है उसका नंबर भी चेंज हो जाएगा.
सो प्रॉपर लोगेन प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आपको प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन आपको इंडिकेट करना होता है. ओके अगर इसके साथ कोई साइड चेन है तो वो साइड चेन का नेम भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा. ओके सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ सेकेंडरी और टर्शरी की अगर हम बात करें तो दे आर नेम्ड एज एन सब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अमाइंस. मतलब RNH2 ग्रुप इज योर प्राइमरी अमाइन. RNH2 ग्रुप इज योर प्राइमरी अमाइन. तो अभी जो सेकेंडरी और टर्शरी होता है तो ये प्राइमरी अमाइन के सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं. ओके सो इसलिए ये एन सब्स्टिट्यूटेड ऐसा लिखते हैं हम इसको. ओके सो इसमें क्या करते हैं हम सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो भी है, जो भी अल्किल ग्रुप है, मतलब अगर कंसिडर सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन है तो उसमें दो अल्किल ग्रुप होंगे R R NH, राइट. दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन. सो इसमें जो R ग्रुप के पास ज्यादा कार्बन होंगे, मतलब जो ज्यादा जिसके पास ज्यादा लंबी कार्बन चेन होगी, दैट विल बी योर पैरेंट अल्केन. ठीक है दैट विल बी योर पैरेंट अल्केन. एंड जो दूसरा R ग्रुप होगा दैट इज सब्स्टिट्यूएंट. ओके दैट इज सब्स्टिट्यूएंट. और जो सब्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे दैट टाइम वी यूज द प्रीफिक्स N. We use the prefix N because ये consider this is the alkyl group which has 4 carbon atom. Okay and this is the alkyl group which has 2 carbon atom. तो ये जो 4 carbon atom वाला alkyl group है this is your parent alkane. और ये जो 2 carbon atom वाला alkyl group है this is your substituent. अभी ये substituent जब हम indicate करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे, हम इसको ऐसा बताएंगे कि ये जो अल्किल ग्रुप है ये किसको अटैच्ड है? नाइट्रोजन एटम को अटैच्ड है. राइट सो दिस इज एन सब्स्टिट्यूटेड. दिस इज एन सब्स्टिट्यूटेड. नाउ यू हैव टू थिंक कि अगर यहाँ पे अगर हम टर्शरी लेंगे तो 3 अल्किल ग्रुप है R R R. ओके तो N. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? एक होगा आपका पेरेंट अल्केन और 2 होंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट. जब 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वो यूज देम, हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? एन एन, क्योंकि ये दोनों अल्किल ग्रुप किसको अटैच्ड है? नाइट्रोजन एटम को अटैच्ड है. ओके सो लेट्स टेक द एग्जांपल, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फाइन. अभी दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन NH है, राइट तो कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन है ना. तो एक है आपका मिथाइल ग्रुप और दूसरा है आपका ब्यूटेन. राइट तो अभी ये 2 अल्किल ग्रुप है आपके पास और इन दोनों में से आपको पेरेंट अल्केन पता करना है. तो कौन सा होगा? जिसके पास ज्यादा कार्बन एटम है, जिसके पास ज्यादा लंबी कार्बन चेन है. तो वो किसके पास है? इसके पास है. कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम है. ओके नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4, क्योंकि अगर हम इस साइड से लेंगे तो इस कार्बन को कितना नंबर आएगा? 3. तो विच इज नॉट करेक्ट. ओके नाउ दिस इज योर मिथाइल ग्रुप. ओके ये है आपका मिथाइल ग्रुप. तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट. नाउ तो जब हम इसका इंडिकेट करेंगे, जैसे हम अल्कोहल या अल्डिहाइड में करते थे, हम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखते थे 2 3 ऐसे नंबर करते थे. राइट यहाँ पे वो नहीं करना है. यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कंसिडर ये मिथाइल ग्रुप है, ये किसको अटैच्ड है? ये नाइट्रोजन एटम को अटैच्ड है. राइट तो हम लिखेंगे N मिथिल टू ब्यूटानामाइन. ओके ब्यूटेन है, ई रिप्लेस किया हमने अमाइन से, तो दिस इज ब्यूटानामाइन. पोजीशन ऑफ NH दैट इज 2. ओके और ये जो अल्किल ग्रुप है दिस इज N मिथिल. ओके आई होप दिस मच इज क्लियर. तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है. ओके नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल. दिस इज टर्शरी. ये टर्शरी है. इस केस में क्या होगा? यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप है तो 3 में से एक अल्किल ग्रुप होगा आपका पेरेंट अल्केन और 2 अल्किल ग्रुप होंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट. तो सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा अल्किल ग्रुप में ज्यादा कार्बन आइटम है. तो इस अल्किल ग्रुप में ज्यादा कार्बन आइटम है. कितने? 3. 3 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज प्रोपेन. कौन सा है? प्रोपेन. सो E is replaced by
amine that is propanamine. ओके अभी दिस इज वन प्रोपेनामाइन क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे आप ऑब्वियसली इस साइड से तो करोगे नहीं है ना. दिस इज द करेक्ट. नाउ इन दिस केस दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप. दोनों डिफरेंट ग्रुप है. नाउ इफ two alkyl groups are different तो arrange them in alphabetical orders. okay पहले इथाइल आएगा और फिर मिथाइल आएगा. ओके और दोनों जगह क्या लिखोगे आप प्रीफिक्स में n इथाइल n मिथाइल सेपरेटेड बाय हाइपन. सेपरेटेड बाय हाइपन. और ये सारा we used to write it as a single word. हाइपन और कॉमा से सेपरेट किया जाता है. बाकी कहीं पे कोई भी स्पेस नहीं दी जाती. ओके तो आपको ये ध्यान रखना है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके टाइम पे आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे. ओके और जो यहाँ पे ग्रुप है उसके टाइम पे आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे. फाइन. नाउ अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों जगह अगर CH3 ग्रुप है, कंसीडर ये इथाइल ग्रुप के जगह मिथिल ग्रुप है और यहाँ पे प्रोपेन ही है तो नाम क्या होगा. इट विल बी N क्वामा N डाइमिथाइल. ओके क्या होगा डाइमिथाइल. सो दैट इज द थिंग. अगर दो अल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो हमें प्रीफिक्स यूज करना होता है डाई ट्राई. ओके और एन एन जैसे हम नंबर को पोजीशन अगर दो अल्किल दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं एक ही नंबर आता है दोनों पोजीशन दोनों अल्किल ग्रुप का दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का तो हम सेपरेटली लिखते हैं ना उसे 2 2 ऐसा लिखते हैं. तो इन द सेम वे हम यहाँ पे लिखेंगे N क्वामा N डाइमिथाइल 1 प्रोपेनामाइन. ओके 1 प्रोपेनामाइन. फाइन. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम होते हैं तो डिफरेंट होते हैं तो नो डाउट अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके सेम होते हैं तो जस्ट बी मतलब ध्यान रखिएगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. फाइन. सो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा. उतने ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. जितने एग्जांपल्स आप सॉल्व करोगे दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल in the naming system okay of amines क्योंकि this naming system is quite different from another one. Alcohol aldehyde they are quite similar but this is totally different. okay so now here is the case. यही हम एग्जांपल की बात कर रहे थे अभी. यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है तीन अल्किल ग्रुप है. दिस इज टर्शरी राइट. तीन अल्किल ग्रुप है सो दिस इज योर पैरेंट अल्केन ऑफ 3 कार्बन एटम. तो कौन सा होगा प्रोपेन होगा. E रिप्लेस बाय अमाइन तो प्रोपेनामाइन है ना. 1 प्रोपेनामाइन हो जाएगा. तो अभी दो अल्किल ग्रुप है. अभी हमने बोला कि जब हम दो अल्किल ग्रुप जब टर्शरी होता है अमाइन तो 2 अल्किल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट. और जब हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो हम प्रीफिक्स लिखते हैं NN राइट. तो अभी दोनों मिथाइल है तो देयर इज नो नीड कि हम ऐसा लिखे N मिथाइल नो नीड. हम डाई लिख सकते हैं राइट क्योंकि दोनों सेम है. So this is N comma N dimethyl 1 propanamine. Okay. Take one more example over here. हम tertiary amine का एग्जाम्पल लेंगे. नाइट्रोजन है यहाँ पे it is CH3 यहाँ पे it is CH3 CH2. Okay. और नीचे है यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3. ओके फाइन. तो दिस इज योर टर्शरी अमाइन. अभी हमको इसका नेमिंग करना है. हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे. सो इन दिस वे देखो अभी 3 कार्बन इधर है सो ये हो गया आपका पेरेंट अल्केन है ना. 3 कार्बन कंटेनिंग अल्केन प्रोपेन. तो E इज रिप्लेस बाय अमाइन तो प्रोपेनामाइन. बट नाइट्रो जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन एटम ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन एटम वो कौन से कार्बन को अटैच है. नंबरिंग तो करनी पड़ेगी ना. 1 2 3. So it is propane to amine. Propane to amine. Okay. Propane to amine. अभी ना IUPAC ने ये वाला सिस्टम ज्यादा यूज कर रही है. IUPAC कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है वो आप यहाँ पे
शो करो, ना कि नेम के पहले। ऐसे भी करोगे तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट दिस इज अपडेटेड वन। ओके, दिस इज अपडेटेड वन कि आप ऐसे शो करो प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। ओके, जैसे हम पहले लिखते थे ना, अल्कोहल वाले केस में हम लिखते हैं प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटाइन टू ऑल, उस तरीके से। ओके, अभी दो अल्किल ग्रुप है विच आर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे फिर, यहाँ पे आप क्या करोगे, एन इथाइल एन मिथाइल, क्या करोगे, एन इथाइल एन मिथाइल। जो पहले हमने एग्जांपल दिया था सेम वही एग्जांपल है, बट इन दिस केस इट इज सेकेंड पोजिशन। ओके, और ये हमने किया है बाय अल्फाबेटिकल, इथाइल मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, दिस इज कंटिन्यू, फाइन। सो इन दैट केस आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, फाइन। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो क्या होगा, तीनों अल्किल ग्रुप इथाइल मिथाइल एंड दिस वन इज आइसोप्रोपिल, राइट। तो कॉमन नेम क्या होगा फिर, अल्फाबेटिकली अरेंज करो, पहले क्या आता है, ई आता है, तो इथाइल मिथाइल और फिर आता है आइसोप्रोपिल अमाइन। ओके, now if we talk about aromatic amine, so that is all about aliphatic one. अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन है दैट इज एनिलीन, राइट। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है एनिलीन। सो बाकी जितने भी है दे आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, एंड आईयूपीएसी ने भी एनिलीन इज कंसिडर एज आईयूपीएसी नेम ओनली। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एक्चुअली इट इज बेंजीन रिंग ना, तो इट इज बेंजीन जिसमें ई इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, राइट। benzene, E is replaced by amine, so this is benzenamine. Okay, this is benzenamine. तो ये चीज आपको याद रखनी है, फाइन। एनिलीन भी आप लिख सकते हो, एनिलीन वर्ड भी आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, बट अगर एक्चुअल आईयूपीएसी नेम ऑफ एनिलीन इज बेंजीनामाइन। ओके, नाउ अभी देखो, दिस इज एज आई सेड, बाकी जितने भी ग्रुप है एमाइंस है दे आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस, ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अभी देखो इस पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, ये पोजीशन कौन सा है, मेटा पोजीशन है, तो कॉमन नेम क्या होगा, मेटा क्लोरो एनिलीन। अगर ये इस पोजीशन पे होता तो ये पोजीशन पैरा है, तो दिस इज पैरा क्लोरो एनिलीन। इस पे होता तो ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, अगर ब्रोमो होता तो ब्रोमो एनिलीन, इन दैट वे। ओके, अभी लुक यहाँ पे दो सीएल ग्रुप है, इन थर्ड वन यहाँ पे दो सीएल ग्रुप, तो वी कांट राइट क्लोरो क्लोरो, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, राइट। इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होगा, इट इज इन द केस ऑफ आईयूपीएसी जब आप एरोमेटिक अमाइंस का करते हो नेमिंग, तो कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन ग्रुप दैट इज फर्स्ट, ओके, उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, और अकॉर्डिंगली फिर बाकी सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे हम उस डायरेक्शन में फिर नंबरिंग करते हैं, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, so 2,3 dichloroaniline. Okay, 2,3 dichloroaniline. Fine. अभी यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज टर्शरी अमाइन, दो मिथाइल ग्रुप है, एक बेंजीन रिंग है, सो दिस इज NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। अभी दिस इज योर पेरेंट अल्केन ना, अलील ग्रुप है, दिस इज योर पेरेंट ग्रुप, तो दिस इज एनिलीन एंड दिस इज कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, तो ये दो ग्रुप जो है दैट इज योर सब्स्टिट्यूएंट, so that's why it is NN dimethyl aniline. Okay, now this one is again fourth, this is your para position, right? So this is para toluidine. ओके, टोलविन ग्रुप, और उसको अगर NH2 ग्रुप अटैच होता है तो वहां पे हम बोलते हैं टोलविडिन, राइट। सो पैरा पोजिशन पे अगर आपका मिथिल ग्रुप है तो दैट इज पैराटोलविडिन, मेटाटोलविडिन, ऑर्थोटोलविडिन। ओके, सो अभी अगर आईयूपीएसी की बात करें तो दिस इज मिथाइल ग्रुप, कौन से पोजिशन पे है,
फोर्थ पोजिशन पे 1 2 3 and fourth. So this is 4-methyl aniline, right? Now see, this is your secondary amine. दो अल्किल ग्रुप है, दोनों कौन से है? फिनिल ग्रुप है, राइट? दोनों फिनिल ग्रुप है. अभी यहाँ पे क्या होगा अगर कॉमन नेम की बात करें तो दैट इज डाइफिनिल अमाइन, है ना? नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन, सो डाइफिनिल अमाइन. अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो एक जो अल्किल ग्रुप है दैट इज योर पैरेंट अल्केन और दूसरा जो है दैट इज योर सब्स्टिट्यूएंट. सो दोनों ही अभी बेंजीन रिंग है ना? सो one group will be considered as a phenyl group, so n phenyl, n phenyl. और दूसरा एनिलीन, तो एन फिनिल आप एनिलीन भी लिख सकते हो या फिर यू कैन राइट एन फिनिल बेंजीनामाइन. ओके, बेंजीनामाइन. ओके, नाउ इन दिस केस अगेन इट इज सेकेंडरी, एक फिनिल ग्रुप है एक मिथाइल ग्रुप है. ओके, सो कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इट इज मिथिल फिनिल अमाइन. अगर हम आईयूपीएसी की बात करें so this is your aniline benzene ring and NH2 group, right? This is your substituent, तो this is n methyl aniline या फिर n methyl benzenamine, n methyl aniline या फिर n methyl benzenamine. ओके, एक और एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं, दैट इज कंसिडर बेंजीन रिंग है. ओके, और ये है CH2 NH2. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर चेन, क्योंकि ये कार्बन एटम को आपका दिस इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन. दिस इज प्राइमरी अमाइन. ओके, NH2 group है which is attached to carbon atom and that carbon atom is attached to the benzene ring, right? तो जो आपका parent group होगा that is of one carbon atom methane, तो मिथानामाइन, right? अगर हम IUPAC की बात करें तो फिनिल मिथानामाइन, नाम क्या होगा? फिनिल मिथानामाइन. मिथानामाइन. ओके, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज बेंजिलामाइन, राइट? क्योंकि ये जो ग्रुप है दैट इज बेंजिल ग्रुप, सो दिस इज बेंजिलामाइन 2, कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो. ओके, तो सॉल्व एज मच एज एग्जाम्पल एज यू कैन. ओके, क्योंकि उसी से प्रैक्टिस होती है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की. ओके, बिकॉज दिस अमाइंस नोमेनक्लेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड. सो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैंने सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस इट आउट, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड यू विल प्रो इन इट. ओके, सो in next class we will study about the preparation of amines. For now this is it, and till the next video, keep learning, keep practicing. Thank you.